Welcome to the online classes of the Hartron Skill Center, Fatehabad. In this class, we are going to learn about the taxes. First, VAT or Value Added Tax. VAT is a kind of tax levied on the sale of goods and services when these commodities are ultimately sold to the consumer. VAT is an integral part of the GDP of any country, while VAT is levied on the sale of goods and services paid by the producer to the government. The actual tax is levied from the customers or the end users who purchase these goods and services. Thus, it is an indirect tax which is paid to the government by customer but via the producers of goods and services. VAT is a multi-stage tax that is levied at each step of production of goods and services, which involves sales and purchase. Any person earning an annual turnover of more than 5 lakh by supplying goods and services is liable to register for VAT payment. Value added tax or VAT is levied on both on local as well as imported goods. वैल्यू एडिड टैक्स वैल्यू एडिड टैक्स वो टैक्स होता है जो प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पे ऐड किया जाता है प्रोडक्ट पर. जैसे ये हम कंज्यूमर जो इनकम अर्न कर रहा है उससे नहीं रिसीव करते इस टैक्स को, बल्कि उससे रिसीव करते हैं जो क्या है टैक्स पेयर्स कंजम्पशन है. मीन्स कि जो उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है या उस प्रोडक्ट पे पैसा लगा रहा है जो इसको अभी परचेज करेगा. ये इनकम पे नहीं लगता, ये प्रोडक्ट और सर्विस पे लगता है जो इसको एक्चुअल में यूज़ कर रहा है या फिर खरीद रहा है. वैल्यू एडिड टैक्स वैल्यू एडिड टैक्स ये हर एक प्रोडक्शन की स्टेज पे लगता है. जब से वो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तब से लेके जब तक वो प्रोडक्ट क्या हो रहा है सेल हो रहा है, तब तक जितना भी हर एक स्टेज पे टैक्स ऐड होगा उसको वैल्यू एडिड टैक्स बोला जाता है. और ये सारा टैक्स हम किसको गवर्नमेंट को ही पे करते हैं जैसे बाकी टैक्सेस पे किए जाते हैं. और ये जो वैल्यू एडेड टैक्स है ये बोथ गुड्स पे लगता है, लोकल पे भी और इम्पोर्टेड गुड्स पे भी. नेक्स्ट इसमें है वैट रेट्स इन इंडिया. वैल्यू एडेड टैक्स जैसे कि हमने अभी स्टडी किया कि ये गुड्स और सर्विस पे लगता है जो क्या कर रहा है कंज्यूमर एक्चुअली में खरीद रहा है, जिसको अब हम जीएसटी के नेम से भी जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये बहुत सिंपल टैक्स है, बहुत सिंपल फॉर्म है टैक्स को कलेक्ट करने का. और इसकी जो रेट्स है इंडिया में उनको हम स्टडी करते हैं. The implementation guidelines and rules of value added tax vary from state to state as the tax is collected by the state governments. VAT in India is categorized under four heads which are as follows. First, nil. Goods and services that fall under this category are exempt from VAT. There are mainly items that are basic and sold in the unorganized sector. Example of such items include khadi and सूट etc. नील मीन्स की ज़ीरो, जो हमारी क्या है वैट से एग्जम्प्ट होती हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज उस पर नील रेट अप्लाई होता है. जैसे कि खादी और सोल्ट होगी, इन पे हम कोई भी वैट नहीं पे करते हैं. नेक्स्ट इसमें है 1%. VAT is charged at 1% for the items under this category. 1% VAT is usually charged on relatively expensive item. The reason why VAT is charged at 1% on expensive good is that increasing the rate of VAT is considerably increases the prices of the item that fall under this category. Some of the examples of the product that fall under this category include gold, silver, precious stones etc. जो ये 1% है ये एक्सपेंसिव आइटम्स पे लगता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन, डायमंड्स एक्सेट्रा. इस पे हम 1% जो वैट है उसको चार्ज करते हैं. नेक्स्ट इसमें है 4 to 5%. वैट इज चार्ज टू 4 to 5% on certain items that are used on daily basis. Example of the items that attract VAT at 4 to 5% includes cooking oil, tea, medicines etc.
मीन्स कि जो हमारे डेली यूजेस की आइटम्स हैं उस पर वैट 4 to 5 चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट इसमें है जर्नल आइटम्स दैट फॉल अंडर जर्नल कैटेगरी अट्रैक्ट वैट 12 to 15%। The items that fall under this category are mainly luxury items such as cigarette, alcohol, etc. जो cigarettes, alcohol है उस पर सबसे ज़्यादा वैट टैक्स चार्ज किया जाता है 12 to 15%। तो इसमें हमने 4 रेट्स के बारे में स्टडी किया। फर्स्ट इज़ नील, जिस जो हमारी एग्जाम्प्ट होती है जिस पे हमें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता, जैसे कि खादी और सोल्ड। सेकंड इसमें है 1%, इस पे 1% पे वो आइटम्स इंक्लूड होती है जो एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं जैसे कि गोल्ड सिल्वर हो गया। 4 to 5 में जो हमारे डेली बेसिक नीड्स हो गई उन पे 4 to 5% वैट चार्ज किया जाता है जैसे कि टी, मेडिसिन एक्सेट्रा। और 12 to 15% मेनली लग्जरी आइटम्स पे चार्ज किया जाता है जैसे कि सिगरेट्स, अल्कोहल एक्सेट्रा। बट वैट को अब जीएसटी के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। अब सिर्फ जीएसटी ही हम चार्ज करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स को। VAT calculation. VAT is actually calculated as the difference between input tax and output tax. VAT का जो फॉर्मूला है वो डिफरेंस है इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। VAT is equal to output tax minus input tax, where output tax is the tax received by the seller from the sale of his goods and services, and input tax is tax paid by the seller for raw materials required to manufacture his goods and services. आउटपुट टैक्स तो वो टैक्स जो सेलर ने रिसीव किया गुड्स और सर्विसेज बेचने पर, और इनपुट टैक्स वो टैक्स जो सेलर ने पे किया रॉ मटेरियल्स खरीदते टाइम ताकि वो गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर सके। जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो होता है हमारा वैल्यू एडिड टैक्स वैट। इसका आगे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे सपोज राम एक owns a restaurant and spent ₹50,000 towards obtaining a raw material. Input tax is 10%, so input tax become 10% of 50,000 is ₹5,000. Now after selling the food made by using the purchased raw materials, Ram was able to make ₹1 lakh. Supposing 10% output tax become 10,000। अब इसमें देखो जो हमारा क्या है, एक राम है वो रॉ मटेरियल्स परचेज करता है 50,000 के, जिस पे इनकम इनपुट टैक्स लग रहा है हमारा 10%। तो 50,000 का 10% हुआ हमारा 5,000 है हमारा इनपुट टैक्स। और रॉ मटेरियल्स परचेज करने के बाद जो भी हम फूड बनाया है उसको जब सेल करेंगे वो 1 लाख का कर दिया, और उस पर भी हमारा आउटपुट टैक्स कितना है 10%। तो 10% 1 लाख पे हमारे हुआ आउटपुट टैक्स 10,000। तो हमने अभी वैट का फॉर्मूला पढ़ा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो जब भी हम 10,000 में से 5,000 लेस करेंगे तो 5,000 जो हमारा अमाउंट निकल के आएगी, दैट 5,000 इज नोन एज वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। नेक्स्ट इज आर सीएसटी और सेंट्रल सेल्स टैक्स। जैसे अभी हमने वैट के बारे में स्टडी किया वैसे ये हमारा क्या है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है। बट अभी ये सारे जो भी टैक्सेस हम स्टडी कर रहे हैं ये सब रिप्लेस कर दिए हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के साथ, जो 1 जुलाई 2017 से को आया था ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। सो CST Central Sales Tax refer to the tax levied on sales generated during interstate trade and commerce in a country. In a sense, it is the tax one has to pay on the sale of goods which are sold through interstate trade. Central Sales Tax is an indirect tax origin based on tax on customers and is payable in the state where a particular product is sold. CST is charged only on interstate transactions or any transaction within a state, or import-export of goods does not fall under its purview. The goods that are sold through interstate trade are subject to central sales tax in India.
However, all sale to foreign missions and SCZ means social economic zones, should not charge any CST. If any items is returned within 180 days, this tax will not be levied. CST. सेंट्रल सेल्स टैक्स वो टैक्स है जो हम इंटर स्टेट में जब ट्रेडिंग करते हैं या कॉमर्स करते हैं उस पर जब हमारा टैक्स चार्ज होता है उसको सेंट्रल सेल्स टैक्स बोला जाता है। सपोज हम दो स्टेट्स का एग्जांपल ले लेते हैं, एक है हरियाणा और दूसरा है बिहार। जब ये दोनों आपस में ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग मीन्स कि जब ये सेल और परचेज करेंगे आपस में, तब जो इन पे टैक्स चार्ज किया जाएगा वो CST चार्ज किया जाएगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स। चाहे वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उसको हम सेल्स टैक्स बोलेंगे। और ये भी हमारा क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो हम कस्टमर से चार्ज करते हैं, जो कि क्या कर रहा है, एक्चुअल में उस प्रोडक्ट का यूज़ कर रहा है। और ये उस स्टेट के अंदर चार्ज होगा जिस स्टेट में एक्चुअल में ये प्रोडक्ट क्या हुआ, सोल्ड हुआ। इसका मेन नोट ये है कि अगर जो सेल्स टैक्स है हमारा वो रिप्लेस कर दिया गया अब 1 जुलाई 2017 से गुड्स एंड सर्विस टैक्स के साथ। मीन्स कि अब ये टैक्स चार्ज नहीं होता, सिर्फ हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज होता है 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट इसमें है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स मीन्स TCS। TCS full form is tax collected at source. This TCS tax is payable by the seller who collects in turn from the lessee or by buyer. The goods are as specified under section 26C of Income Tax Act 1961. TCS का हमारा फुल फॉर्म है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जैसे हमारा क्या था, TDS था टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वैसे TCS की फुल फॉर्म है हमारी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। हमने एक टर्म पढ़ी थी TDS में क्या था कि जो डिडक्टर है वो पहले ही अमाउंट में से पैसा डिडक्ट कर लेगा डिडक्टी की अमाउंट में से, मतलब डिडक्टी जो पैसा एक्चुअल में रिसीव करना है जिसने, उसके पैसे में से पहले कुछ अमाउंट को डिडक्ट कर लेगा। सपोज 10,000 उसने रिसीव करने थे डिडक्टी ने, तो जो डिडक्टर है वो उसने जो टैक्स लेना है उससे, उसमें से 100 रुपीज़ पहले कलेक्ट कर लिए, तो वो उसको कितने रुपीज़ वापस देगा, हमने 10,000 एज्यूम किया ना, उसमें से 100 रुपीज़ उसने डिडक्ट कर लिए एज अ टैक्स, तो बाकी का बचता जितना भी पैसा है वो उसको वापस डिडक्टी को रिटर्न कर देगा। इसमें टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में अमाउंट डिडक्ट हुई, बट जो टैक्स कलेक्टेड सोर्स है इसमें कलेक्टेड से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम पहले ही कलेक्ट कर लेते हैं। हम सेलर हैं, हमने किसी को गुड्स बेची, बायर से अब हम पैसा ले रहे हैं तो हम उससे पहले ही कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर लेंगे। इसमें भी हम यही एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं। सपोज हमने 10,000 लेने थे उससे, हमने पहले ही उसको कह दिया कि ये आपने 10,000 नहीं, हमने उनसे 10,100 रिसीव कर लिए। लेने तो एक्चुअल उससे 10,000 थे बट 10,100 रिसीव कर लिए कि जो 100 रुपीज़ है ऊपर का वो हम क्या पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को। तो हमने बिना कोई डिडक्ट किया अमाउंट पहले ही उससे कलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा एग्जांपल है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की, मतलब जो हमने टैक्स पे करना है उसको पहले कलेक्ट कर लिया जब हम बायर से क्या ले रहे हैं, पैसा रिसीव कर रहे हैं। सो इसमें ये जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है ये अंडर सेक्शन 26C के अंदर आता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। और जो इसकी क्लासिफिकेशन है सेलर की TCS में वो है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और अथॉरिटी, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या है, सेलर्स हैं जिन जो क्या करेंगे, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स करेंगे, उनका इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसी तरह हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ बायर्स इसमें गिवन है। अ बायर इज वन हु एज एन इंडिविजुअल और सिंगल एंटिटी ऑब्टेन गुड्स
or even the right of receiving goods at sale, tender, auction, or other modes. The following are people and organizations who are exempted from the classification of buyer for tax collected at source. इसमें जो buyer है उसको हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट दे रहे हैं, तो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बायर्स बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसमें एग्जांपल्स आपको गिवन है जैसे कि पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, कंपनीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी ऑफ हाई कमीशन, consulate and other trade representation of a foreign nation, clubs such as sport clubs and social clubs। मीन्स कि ये हमारे क्या है, वो पीपल और ऑर्गेनाइजेशन है जिन पे हम टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे। मीन्स कि ये सब क्या है, एग्जम्प्ट है टीसीएस को पे करने के लिए। नेक्स्ट इसमें गुड्स एंड ट्रांजैक्शंस गिवन है टीसीएस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इसमें है हमारी जैसे कि द फॉलोइंग आर कंसिडर फॉर कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स दैट अंडर टीसीएस आर liquor of alcoholic nature made for consumption by humans, timber wood when collected from a forest that has been leased, tendu leaves, timber wood when not collected from a forest that has been leased but any other mode, a forest product other than tendu leaves and timber, scrap, toll plaza, parking lot ticket, quarrying and mining, minerals that include lignite or coal or iron ore, bullion that exceeds over 2 lakh and jewelry that exceeds over 5 lakh। मीन्स कि ये सब हमारे क्या है, गुड्स एंड ट्रांजेक्शन्स हैं जो टीडीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के अंदर कंसीडर की जाती हैं। नेक्स्ट इसमें है हमारी सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। The central excise and service tax is levied on all individuals who are involved in the production, manufacture, and/or distribution of a trade. The tax is expected to be revised every year when the year's budget is announced by the government. जो ये हमारी सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स है, ये उन इंडिविजुअल्स पे लगती है जो किसमें इन्वॉल्व होते हैं, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में, मैन्युफैक्चर प्रोसेस में और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम गुड्स और सर्विसेज की। और ये टैक्स हम हर साल के एंड पे रिवाइज करते हैं जब भी हमारा क्या होता है, बजट अनाउंस करती है गवर्नमेंट। सो एक्साइज टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लीव्ड ऑन सर्टेन गुड्स emphasizing their manufacture, sale and use in a particular setting. This tax is not directly applied by the government within an intermediary acting on the behalf of government who collects and pay this to the relevant authority. Example, alcohol, tobacco and fuel. एक्साइज टैक्स ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जो गुड्स पे लगता है मैन्युफैक्चर के टाइम और सेल ऑफ दैट गुड, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम। और ये गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं चार्ज करती, मतलब ये हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते, एक इंटरमीडियरी के थ्रू पे करते हैं। सपोज हम इसमें इंटरमीडियरी का एग्जांपल ले लेते हैं, सेलर। हम बायर है, हम सेलर को वो टैक्स क्या करेंगे, पे करेंगे, फिर आगे वो टैक्स सेलर गवर्नमेंट को पे करेगा। मतलब कि ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे अल्कोहल, तंबाकू एंड फ्यूल। इसको हम जो बायर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करेगा, एक इंटरमीडियरी के थ्रू पे करेगा गवर्नमेंट को। और नेक्स्ट इसमें है हमारा सर्विस टैक्स। There are certain services which we avail as residents of a particular nation, and service tax is an indirect tax which is levied by the government. This tax is levied on service providers who offer these services to us, the general public. Traditionally, this tax is paid by the customers, with the providers passing this collected tax to the government. Example, restaurant bill, etc. सर्विस टैक्स हमारा जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया टैक्स है, और ये भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको
जो कस्टमर है इसको पे करना ही पड़ता है। और इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ट्यूशन फीसेस हो गई हमारी, या मूवी टिकट्स हो गई, रेस्टोरेंट बिल हो गया। तो जो भी हमने उनसे सर्विसेज रिसीव करी उसके बदले हमें उन सर्विसेज के बदले टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको हम सर्विस टैक्स बोला जाता है। जो कि हम किसको पेमेंट करते हैं, गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पेमेंट करते हैं ये हम गवर्नमेंट को टैक्स की। सो दिस इज द सर्विस टैक्स, जो कस्टमर पे करता है, जो सर्विस का क्या ले रहा है, बेनिफिट ले रहा है, और गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती है। थैंक यू। प्रेजेंटेशन क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हार्ट्रॉन स्किल सेंटर फतेहाबाद CC08 बाय सिमरन ट्यूटर पुलकित मुंगा कंसेप्ट एंड डिज़ाइन।